Hello my friends, welcome to BA to Care. So let's talk about the best law entrance in 2024. Either you should prepare for the MH Law CET or you should try for the SLAT from the Symbiosis one, which will provide you great exposure, either MH Law CET or SLAT, which will provide you the best placement stats. Guys, here in this particular video we'll talk in detail. So overall we'll see the comparison between these two entrance exams. Lot of legal aspirants are there who prepare for CET to target the top legal institute in Maharashtra, while the number of aspirants shows great interest to write the SLAT, the Symbiosis Law Admission Test. Guys, watch this particular video till the end. Here we'll talk about the comparison between these two entrance exams, and want a preparation for these two, then you can join our batches at Ghatkopar, Dadar and Dombivli, where you will get classroom preparations. You can also interact live with us, so call on 8383818888. Here you will get preparation for MH Law CET 5 years 2024, even for SLAT, even for the respective law entrance exams such as the ANLAT, and even for the CLAT. So start preparation with us, get ultimate success, get recorded lectures, test series, mock test, doubt class, mentorship, guidance, motivation, and there will be separate batch with respect to all the law entrance exams. So guys, wanna preparation, call on this particular number, and if you have any doubts and queries, you can ask on it, and even you can ask me in the below comment section. So let's start the video guys. Here you can pursue the law 5 years program either in terms of BA LLB and even the BBA LLB. Same program you can pursue it from the Symbiosis Law School. So overall, it is Maharashtra Law Common Entrance Test Cell, while it is Symbiosis Law Admission Test Cell. Both conducts their own exam for their top institutes, and here not only from the Maharashtra state but from all over India, student will participate, student will write the exam and try for their top campuses. So guys, very first one, Maharashtra Law CET is a state level exam, while Symbiosis it is a university level exam. इसका मतलब आप इनके यूनिवर्सिटी के कुछ कैंपसेस है, बस उन्हीं को टारगेट कर सकते हो, बाकी दूसरे कॉलेजेस को नहीं. सो स्टेट लेवल एग्जाम का क्या बेनिफिट है गाइस कि यहाँ जो कॉलेजेस है 142 प्लस कॉलेजेस है, और ओवरऑल जो एस्पिरेंट्स ट्राई करते हैं हर ईयर 28,000 प्लस. ये नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन है गाइस. नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इससे भी बढ़ सकते हैं, कभी 30,000 हो जाता है, कभी 35, अप्रॉक्स 40,000 तक भी चले जाते हैं. लेकिन बात आती है कि नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स, तब पता चलता है कि हाँ इतने सारे बच्चे उस पर्टिकुलर एग्जाम को लिखते हैं. वाइल अगर मैं सिम्बायोसिस की बात करूं, इनके 4 कैंपसेस हैं. द मोस्ट फेमस वन द SLS पुणे, दे आफ्टर द नागपुर वन, नोएडा एंड दी हैदराबाद. सो ओवरऑल इनके 4 कैंपसेस है. इन 4 कैंपसेस को आप टारगेट कर सकते हो. ओवरऑल अगर एस्पिरेंट्स की बात करूँ देन 20,000 प्लस रजिस्ट्रेशन हर साल होते हैं. यानी कि गाइज इन 4 कैंपस के लिए कंपटीशन बड़ा टफ है, क्योंकि सिम्बायोसिस काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. एंड डोंट फॉरगेट सिम्बायोसिस इज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स. सो CET को लेकर प्रीवियसली इन 2023 19,295 कैंडिडेट ने ये एग्जाम लिखा था. वही अगर मैं स्लैट की बात करूँ, almost 16,000 plus candidate for the 2023, and even same stats remained in 2022. लेकिन ये हो सकता है कि guys approx 20,000 plus candidate ट्राई करें in 2024. वही अगर मैं बात करूँ टोटल सीट्स की, देन एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे कॉलेजेस आपको मिल जाती है. देर आर 11,520 सीट्स इन ऑल ओवर महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की सारी कॉलेजेस में आपको इतनी सारी सीट मिलेगी. लेकिन गाइज कंपटीशन यहाँ भी देख लो, अब 19,295 ट्राई कर रहे हैं और 11,520 सीट्स के लिए. सो यहाँ जो भाई रेस में आगे रहेगा उसे एडमिशन मिलने वाला है. वही अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ, देन अगर आप सिर्फ टॉप 10 कॉलेजेस के लिए टारगेट कर रहे हो, देन आपके पास 1,000 प्लस सीट्स है. अब उन 1,000 प्लस सीट्स के लिए ये कॉम्पिटिशन तो बड़ा टफ है. सो गाइज आपको हमेशा यहाँ 120 प्लस का स्कोर लाना है. वही अगर मैं बात करूँ सिम्बायोसिस को लेकर, तो इनकी 4 कैंपसेस है, और चारों कैंपसेस की जो ओवरऑल सीट्स है 1,080 सीट्स, जो इनके पुणे, नागपुर, नोएडा एंड हैदराबाद से रिलेटेड है. और यहाँ आपको दोनों प्रोग्राम मिलेंगे हर एक कैंपस में. BA LLB के लिए यहाँ 180 सीट्स रहेगी, वाइल BBA LLB के लिए यहाँ 120 सीट्स रहेगी. सो अगर आपको BA LLB या BBA LLB करना है, देन विच पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम यू शुड राइट, और इनका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है. सो बात करते हैं गाइस एग्जाम पैटर्न को लेकर. दोनों एग्जाम जो होती है ये ऑनलाइन CBT मोड में होती है, यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है. बस आपको अपने रिस्पेक्टिव सेंटर पर विजिट करना है, जिसकी आपने चॉइसेस दी है. वहाँ जाकर एक वेन्यू मिलेगा आपको, एक पर्टिकुलर कॉलेज में आपको कंप्यूटर पर बैठ के ये पूरी एग्जाम देनी है. अब बात करते हैं कि भाई क्वेश्चंस कितने आने वाले. सो 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मिनट का आपके पास टाइम ड्यूरेशन है. भाई 2 आवर्स में आपको 150 क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. वही अगर मैं बात करूँ स्लैट को लेकर, सो 60 क्वेश्चंस है इन 60 मिनट्स. बहुत अच्छा एग्जाम है गाइज. बस 1 घंटे में आपका लीगल फील्ड की तरफ जाना तय है. 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स एंड फॉर दिस 60 मार्क्स ओनली. सो
काफी बढ़िया एग्जाम है, 1 मिनट मिल रहा है आपको हर एक क्वेश्चन का। भाई एक्यूरेसी मेंटेन करो और क्या कट ऑफ लाना है इसके बारे में बात करेंगे। सो पेपर पैटर्न को लेकर बात करते हैं पहले एमएच लॉ सीईटी को लेकर। सो यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, इंग्लिश को लेकर 30 क्वेश्चंस, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चंस, लीगल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चंस, जीके एंड करंट अफेयर्स 30। ओवरऑल 150 क्वेश्चंस है आपके पास और इन 150 क्वेश्चंस में से आपको स्कोर करना है एटलीस्ट 120 मार्क्स। चाहे आप महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो या अदर देन महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो, 120 मार्क्स तो लाना ही है भैया अगर आपको जीएलसी, आईएलएस, प्रवीण गांधी इन पर्टिकुलर कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। वही अगर मैं बात करूं सिम्बायोसिस को लेकर, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 12 क्वेश्चंस, एनालिटिकल रीजनिंग 12, लॉजिकल रीजनिंग 12, लीगल रीजनिंग 12, जनरल नॉलेज 12, इक्वल वेटेज अमंग ऑल द सेक्शंस। सो ये इक्वल वेटेज का बेनिफिट एक है गाइस कि सपोज जनरल नॉलेज आपका काफी डिफिकल्ट सेक्शन है, कोई बात नहीं, इसे स्किप कर दो, इसमें से कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर दो, बाकी फोकस आप अपने रिस्पेक्टिव सेक्शंस पर दे सकते हो। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ भी नहीं है, सेक्शनल टाइम लिमिट यहाँ भी नहीं है, 1 आवर मिल रहा है, 60 क्वेश्चंस मिल रहे हैं और 60 में से एटलीस्ट आपको 45 तक तो आना ही है गाइस। देखो 42, 44 यहाँ आपको पुणे का कैंपस मिल जाता है और अगर भाई पुणे का कैंपस मिल गया तो आपकी लाइफ सेट है गाइस। सबसे बेस्ट पैकेज आपको एसएलएस पुणे प्रोवाइड करने वाला है। सो टारगेट करना है 45 आउट ऑफ 60 और यहाँ टारगेट करना है 120 आउट ऑफ 150। मैं कहूँगा गाइज आप दोनों एग्जाम के लिए ट्राई कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैट के लिए भी ट्राई कीजिए, उसके बाद आप एमएच लॉ सीईटी के लिए भी ट्राई कीजिए। ओवरऑल एक्सपोजर जो है आपके लिए काफ़ी बढ़ जाएगा कि भाई सिम्बायोसिस के भी 4 कैंपस है, इसमें से कोई एक कैंपस आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको कहीं दूर नहीं जाना, मुंबई का बंदा भाई मुंबई ज़्यादा रहना चाहता है, तो मुंबई की जो टॉप कॉलेजेस है जीएलसी, प्रवीण गांधी, उमला, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी, इसे भी आप टारगेट कर सकते हो। सो अब बात करते हैं कि भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। सो काफ़ी यूनिक सिलेक्शन प्रोसेस है। वही अगर मैं बात करूँ एमएच लॉ सीईटी की, तो ये स्टेट लेवल एग्जाम है, तो भाई इनका जो प्रोसेस होता है वो होता है पूरा सेंट्रलाइज, यानी सारे स्टूडेंट एक जगह आएंगे और उसी के थ्रू उनका एडमिशन होने वाला है, जिसे हम कहते हैं कैप राउंड, द सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। वाइल स्लैट क्या करता है, ये कुछ सिलेक्शन प्रोसेस के पैरामीटर्स को इंक्लूड करता है, शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस थ्रू द पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर्स है कि भाई देयर इज पीआई एंड वैट। वही अगर बात करूं तो एमएच लॉ सीईटी में ना तो कोई पीआई है, ना कोई वैट है, ना कोई ग्रुप डिस्कशन है। भाई आपने सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया, बस कैप राउंड के थ्रू आपका एडमिशन होने वाला है, जिसके कुछ ये स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना होता है, दे आफ्टर यू हैव टू चूज योर ऑप्शंस। सीट अलॉटमेंट आपको मिल जाती है, जो भी आपने प्रेफरेंसेस दिए, सपोज कोई 5 प्रेफरेंस दिए आपने, उसमें से एक कॉलेज अलॉट हो चुका है। अब आपका मन है ये चाहिए तो इसे फ्रीज करो, नहीं चाहिए तो बेटरमेंट भाई सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अगर आपको वो सीट चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन आप उसका अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लो और रिपोर्ट एआरसी टू द ऑफलाइन। आपको जो सीट मिली है उसके लिए 1000 रुपीज़ पे करना है, उस रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में विजिट करो, वहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करो और अपना एडमिशन कंफर्म करो। वही अगर बात करूँ स्लैट को लेकर 50% वेटेज मिलता है आपको, पीआई को लेकर 30% वेटेज एंड वैट को लेकर 20% वेटेज। डोंट वरी अबाउट द पीआई एंड वैट, यू विल गेट कंप्लीट प्रिपरेशन एट द BEDUCATE एंड आउट ऑफ दीज 100 योर मेरिट लिस्ट विल बी जनरेटेड एंड अकॉर्डिंग टू दैट मेरिट आपका एडमिशन होने वाला है। यहाँ भी आप प्रेफरेंस दोगे कि भाई मुझे एसएलएस पुणे के लिए पहले जाना है, ठीक है, नागपुर के लिए सेकंड जाना है, नोएडा के लिए थर्ड जाना है। आप पुणे के बाद सेकंड नंबर पे नोएडा ट्राई कीजिए, नोएडा काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है गाइस, और उसके बाद आप जा सकते हो हैदराबाद के लिए। एट द लास्ट आप नागपुर के लिए भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। महाराष्ट्र के दूर नहीं जाना तो पुणे और नागपुर और महाराष्ट्र के टॉप कॉलेजेस टारगेट करनी है। देन गाइज हर एक सिटी में यहाँ टॉप कॉलेजेस है। सिटी वाइज कॉलेजेस को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो उस रिस्पेक्टिव वीडियो को आप देख सकते हो और आपको पता चल सकता है कि भाई एग्जैक्टली मुझे क्या कट ऑफ लाना है वहाँ, ठीक है गाइज। तो ये हो गई सिलेक्शन प्रोसेस की बात। अब हालांकि हमें ये इंस्टीट्यूट को टारगेट करना है, तो फीस कितनी इन्वेस्ट करनी है और क्या प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाले, लेट्स टॉक अबाउट द टॉप कॉलेजेस, देयर रिस्पेक्टिव फीस और प्लेसमेंट क्या होने वाला है। सो गाइज एमएच लॉ सीईटी के थ्रू आप कुछ टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो, सच एज जीएलसी मुंबई, आईएलएस पुणे, प्रवीण गांधी इवन इन मुंबई, उमला, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई लॉ एकेडमी, देयर इज रिजवी कॉलेज, देयर इज शंकरराव चौहान कॉलेज इन पुणे, फिरोदिया लॉ कॉलेज इन पुणे। नागपुर की भी टॉप कॉलेजेस है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी को आप ट्राई कर सकते हो। सो देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट्स गाइस, सिटी वाइज कॉलेजेस की वीडियोस जरूर देखना, ओके। दे आफ्टर स्लैट के थ्रू आप टारगेट कर सकते एसएलएस पुणे, नोएडा 1, नागपुर एंड इवन द हैदराबाद 1। सो व्हाट विल बी द फीस स्ट्रक्चर, एमएच लॉ सीईटी के थ्रू जो आपको फीस मिलने वाली है गाइस काफी कम होने वाली है। सो 6000 मिनिमम फीस, इवन अगर आप ट्राई करते हो कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो वहाँ 4000 to 5000 पर एएनएम की फीस स्ट्रक्चर हो सकती है आपकी। और वही अगर अनएडेड और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहे हो देन अप टू 70,000 पर एएनएम। वाइल जो प्लेसमेंट यहाँ मिलने वाला है गाइज आपको
टॉप लीगल फर्म्स यहाँ विजिट करता है। 10 to 12 लाख का हाईएस्ट पैकेज आप ग्रैब कर सकते हो। अराउंड जो एवरेज पैकेज होने वाला है गाइस 4 to 5 लाख पर एनम तक आपको मिल सकता है। वही अगर मैं बात करूं स्लैट के थ्रू, देन गाइस फी स्ट्रक्चर हाई जरूर है, 4,15,000 पर एनम, लेकिन यहाँ जो प्लेसमेंट आपको मिलने वाला है 16 to 18 लाख पर एनम का पैकेज। इनके जो एवरेज पैकेजेस जाते हैं गाइस 8 to 10 लाख पर एनम का पैकेज आपको इजीली मिल सकता है। सो ओवरऑल गाइस आप एमएच लॉ सीटी के लिए ट्राई कीजिए या फिर स्लैट के लिए, इट्स वर्थ इट। नाउ इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन यू कि भाई आपको कैसा एक्सपोजर चाहिए ओवरऑल, आइदर कुछ स्टेट लेवल की टॉप कॉलेजेस या फिर एक मल्टीनेशनल यूनिवर्सिटी के टॉप कैंपसेस। सो ओवरऑल एक ही थिंग सेम है, एंड दैट इज नथिंग बट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर देयर रिस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम आइदर फॉर एमएच लॉ सीटी और फॉर स्लैट। एंड वांट अ प्रिपरेशन, जॉइन बी एडुकेयर at Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline classes. And if you are Pan India student, you can interact live with us. Call on 8383818888. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And for all the updates and notifications, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.